opinion that the amendments, by creating a different kind of criteria, have to be viewed separately, and that Indira Sahni was confined to reservations under 15.4 and 16.4 is because permitting the breach of the 50% rule, as it were, through this reasoning becomes a gateway for further infractions, whereby, which in fact would result in compartmentalization. The rule of reservation could well then become the rule of equality or the right to equality, could then be easily reduced to a right to reservation, leading us back to the days of Champakam Durai Raja. In this regard, the observations of Ambedkar have to be kept in mind that reservations are to be seen as temporary and exceptional, or else they could eat up the rule of equality. The fraternal principle, I'm now summing up. The fraternal principle is deeply embedded to this nation's ethos and culture. The specific provisions which form part of the Equality Code are inextricably intertwined with fraternity as well. It is fraternity and no other idea which acknowledges that ultimately all individuals are human beings born through the same natural process, subject to the same physical limitations, and finally leave this world at an unknown time but are sure to live. Fraternity is a concept awakens humans. जानी चाहिए। चौथा, आखिरकार समानता की व्याख्या क्या है? समानता की व्याख्या यही है कि समाज के हर लोग को उचित प्रतिनिधित्व मिले, उचित हालात में मिले और उनको अपॉर्चुनिटी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, उचित अवसर मिले अपना जीवन व्यापन का। तो इस तरीके से जो नया जो ये 103वां जो अमेंडमेंट था, वो ये अवसर प्रदान करता है इन बदली हुई परिस्थितियों में कि कैसे अपना जीवन व्यापन करने के लिए इंसान के पास अपना मौका हो सकता है। और 7 दिन तक इस पूरे के पूरे मामले की विस्तृत सुनवाई चलती रही, जिसके बाद but with cooperation and harmony. On this, I want to highlight the words of 2 social reformers, which demonstrate that the principle of fraternity and the ideas and values connected to it are not new, but in fact transcend time. Swami Vivekananda's message in his address to the World Parliament of Religions in Chicago on 11 September 1893 has the theme of universal brotherhood of all, that differences in religion, the exclusion of one of other would fade. He evocatively said, if anybody dreams of the exclusive survival of his own religion and destruction of others, I pity him from the bottom of my heart and point out to him the banner of every religion will soon be written, in spite of resistance, help and not fight, assimilation and not destruction, harmony and peace and not dissension. Aurobindo too was conscious of the need for fraternity. In a speech delivered in Howrah in 1909, he presciently said, again, there is fraternity. It is the last term of the gospel. It is the most difficult to achieve. Still, it is a thing towards which all religions call and human aspirations rise. अधिकार, और इसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसकी पूरी व्याख्या की है और न्यायाधीशों ने इसका जो है इसका परिभाषित किया है, जजमेंट देते वक्त इन बातों को कहा है। जी, an imperfect and limited fulfillment of them. It is the nature, the dharma of humanity, that it should be unwilling to stand alone. Every man seeks the brotherhood of his fellow, and we can only live by fraternity with others. Through all its differences and discords, humanity is striving to become one. Summary of findings in questions 1 and 3. On question 1, it is held that the state's compelling interest to fulfill the objectives set out in the directive principles through special provisions on the basis of economic criteria is legitimate. That reservation or special provisions have so far been provided in favor of historically disadvantaged communities cannot be
the basis for containing that other disadvantaged groups who have not been able to progress due to the ill effects of poverty should remain so, and the special provision should not be made by way of affirmative action. Therefore, the special provisions based on objective economic criteria is per se not violated. However, in answer to question 3, I have highlighted the framework within which has been introduced by the impugned amendment, excluding backward classes. According to me, तो सुना आपने एक महत्वपूर्ण फैसला आज जो बेंच है वो पढ़ रही है और देखा यह जा रहा है कि संवैधानिक पीठ के जो 3 जज हैं उन्होंने एकमत होकर फैसला सुनाया है, सहमति उन्होंने जताई है। और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से हितेश वाजपेयी जी जुड़ गए। हितेश जी, किस तरीके से आप देखते हैं EWS 2019 से चला रहा ये पूरा मामला, अब 5 जजों की बेंच जो फैसला पढ़ रही है उसमें 3 जजों की सहमति बन रही है कि ये किसी भी तरीके से बुनियादी ढांचे के, संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और जो ये सहमति है हम लगभग 4 की मान सकते हैं जी। और उसमें हम इसको यदि लेकर भी चले तो देखिए ये सरकार के फैसलों पर मोहर लगाती है। मैं बस इतनी बात कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी जी या शिवराज जी यदि कोई फैसला लेते हैं तो विधि सम्मत भी होता है। तो इससे एक इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट पता लगता है कि हाउ सीरियस द गवर्नमेंट इज। वहीं दूसरी ओर यदि आप प्रदेश के संदर्भ में कमलनाथ जी के फैसलों को देखिए तो आज तक सारे फैसले उनके लिटिगेशन में पड़े, क्योंकि कोई तैयारी नहीं है ना। उन्होंने मुंह खोला, घोषणा करी, उसकी कोई विधिक मान्यता है पूरी करना, प्रक्रिया का पालन करना, उन विधिक सीमाओं के अंदर लाकर उस कार्य को करना, ये सब करने का वो प्रयास ही नहीं करते। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो एक अंतर दिखाई देता है। बाकी हमें तो पता था हमारे फैसले विधि सम्मत हैं, तो हम तो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर अपनी बात को मजबूती से रख सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो इस तरीके से अब ये साफ हो गया। हालांकि कई सारे दलीलें भी रखी गई थी सुनवाई के दौरान, जहां पर यह भी कहा गया था, यह आरोप लगाया गया था विरोध करते हुए EWS कोटे का कि पिछले दरवाजे से आरक्षण की मूल अवधारणा को खत्म करने का प्रयास करते हुए, बताते हुए संविधान का उल्लंघन बताया गया था। आज लेकिन जो जजों ने फैसला पढ़ा है उसमें ये साफ किया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और साथ ही कांग्रेस से मानक अग्रवाल जी जुड़ गए। मानक जी, कई सारी दलीलें रखी गई थी और ये भी कहा गया था कि मूल ढांचे का उल्लंघन होगा इस कोटे से, लेकिन अब जजों की जो सुनवाई के दौरान जजों ने जो फैसला सुनाया है उसमें साफ किया गया है कि किसी भी तरीके का कोई उल्लंघन नहीं है, बल्कि एक ये आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग है उसको 10% आरक्षण देना एक बहुत बड़ी मदद भी होगी। और सारी चीजों को देखने के बाद में ही फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। मैं समझता हूँ कि अब इस मामले में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जी, यानी कि आप ये मानते हैं ना कि जो फैसला लिया गया था 2019 में EWS कोटा जो लाया गया था, ये कहीं ना कहीं एक बहुत मददगार साबित हुआ कई वर्गों को। मददगार तो है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है। मैं समझता हूँ कि इसका सबको स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल। हितेश जी, यहाँ पर कांग्रेस का यही कहना है कि सबको स्वागत करना चाहिए। वो तो पूरी तरीके से सहमति जता रहे हैं कि यदि सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना रही तो जाहिर सी बात है कि वो सही ही है। एक बड़ी चतुराई से अग्रवाल साहब ने अपने आप को किनारा किया। पॉलिटिकल लायबिलिटी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 50 साल इसकी 70 साल सरकार नहीं, कभी इन्होंने सोचा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी होते हैं अदर देन आरक्षित वर्ग, और उनके बारे में भी सोचा जाए, देश के गरीबों के बारे में जाति से उठकर विचार किया जाए। कभी नहीं सोचा। इन्होंने हमेशा अल्पसंख्यकों के बारे में सोचा तुष्टीकरण के आधार पर, SC/ST के बारे में वोट बैंक के आधार पर सोचा। इन्होंने कभी ब्राह्मणों को, पाटीदारों को, पटेलों, इनको कभी माने ही नहीं कि ये भी देश के नागरिक हैं जो बेहद गरीब हैं। तो आप सोचिए, एक पॉलिटिकली मेच्योर फैसला था जिस पर विधिक आधार पर भी ये संवैधानिक रूप से मेच्योर फैसला है। इसकी मोहर लगाई है जो कांग्रेस नहीं कर पाई। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती रही और हमने देश की मुख्य धारा में आरक्षण जैसे गंभीर विषय में भी इनकी भागीदारी सुरक्षित करी कि EWS नाम की भी चीज होती है साहब।
जी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हर जाति में होते हैं, ऐसा थोड़ा ना होता है कि केवल वोट बैंक के आधार पर फैसले होंगे इससे। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सही कहा है कि गरीब वर्ग के लोग हर जाति में होते हैं और अक्सर ये देखा जा रहा था कि जो व्यक्ति काफी धन बल से मजबूत है उसके बावजूद वो SC ST हो, OBC हो, वो आरक्षण का लाभ ले रहा था। लेकिन यदि सवर्ण वर्ग है, वो गरीब व्यक्ति भी है, तो उसको भी लाभ कहीं से नहीं मिल पा रहा था। तो जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने जो आरक्षण की बात कही थी, जो कोटा लाए थे, वो एक बहुत बड़ी संख्या के